OpenAI ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे हैं अपने नए मॉडल्स को जिनका नाम इन्होंने GPT 4.1 रखा है। इसके अंदर इन्होंने 3 वेरिएंट्स निकाले हैं, 4.1 नैनो, 4.1 मिनी और 4.1। इन मॉडल्स के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की है व्हेन इट कम्स टू कोडिंग। लॉन्ग कंटेक्स्ट विंडो दी गई है ऑफ 1 मिलियन टोकन और ये काफी ज्यादा बेटर है व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। और जो सबसे बेस्ट चीज है इन मॉडल्स की, ये OpenAI के पहले मॉडल्स हैं जिनके अंदर 1 मिलियन कंटेक्स्ट विंडो लेंथ दी गई है। OpenAI ने इन मॉडल्स की एक डेमो वीडियो निकाली है यूट्यूब के अंदर। चलो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं। So to test the log file that I'm about to upload, that file is NASA's server request response log file from 1995 August. Let me show you that file. You just have this file lying around? Yeah, you don't? I prefer the 94. Oh, The 94 is a great version. that's a good one. Yeah. So in this log file, you can see the client name in the left that made the request to NASA's servers. You see the timestamp, the resource that was accessed, and the HTTP response code. This is a long file that contains a lot of log lines. And you can see on the left that this is about 450,000 tokens of content here. Nice. So you just couldn't use this with our past models? Yeah, this wasn't possible. So let's try uploading this file. Now what I've done is I've snuck in a line that is not actually an HTTP request response. Let's see if it can find it. Very sneaky of you. Okay, so it's a little needle in a haystack, except in this case, you don't even tell it what the needle looks like. It's just figure out what's different and tell me. Exactly. So it's going to sift through the whole file, do some pattern matching to see how all the log lines look like, and then try to see if there's one that does not look like the others. Nice. And I really like this thinking spinner. So this is just the front end that we created in the demo right before this one. Exactly. It's like a nice actively going spinner. And all the front-end improvements also are showing up here, even in this like very limited single-page Python application that we asked it to write. It doesn't have access to like other additional files that it could spit out for styling or anything like that. So totally. Yeah, I think this front end is definitely significantly better than one I can make. So it meets my bar for sure. yeah. And this spinning thing is kind of neat. Definitely taken a sec, but I think we're almost there. Come on, 4.1. Live demos are awesome. Okay. We made it. Okay, there is a line that it has spit out that does not look like an HTTP request line to me. It does not. Okay, let's see if this line is indeed in the log file that we uploaded. Nice. Yeah, There it is. Great. So it was able to find this line that has been snuck into this deep 450,000 token log file that is like very hard to find. So did pretty well. Nice job, GPT 4.1. तो फाइनली हमारे पास OpenAI की तरफ से GPT 4.1 API के अंदर अवेलेबल है अभी के लिए। अभी के लिए ये आपको चैट विंडो में नहीं दिखेगा, बट API में आप इसे यूज कर सकते हो। जो इसकी खास बात है, ये मॉडल सपोर्ट करता है 1 मिलियन टोकन्स ऑफ लेंथ को। इसके साथ इसकी जो नॉलेज है वो ऑलमोस्ट जून 2024 तक है, जो काफी ज्यादा लेटेस्ट है। और ये मॉडल नॉन रीजनिंग मॉडल्स हैं, बट स्टिल ये रीजनिंग मॉडल थिंकिंग मॉडल्स को भी बीट कर रहे हैं बेंचमार्क्स के अंदर। अगर हम OpenAI का फैमिली इंटेलिजेंस लेटेंसी बेंचमार्क देखें तो इसके अंदर इन्होंने दिखाया गया कि मॉडल कैसे परफॉर्म करता है व्हेन इट कम्स टू लेटेंसी और इंटेलिजेंस। जो इनका सबसे छोटा मॉडल है वो है GPT 4.1 नैनो। ये मॉडल लेटेंसी के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स मिलता है और ये काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बट ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बट अगर हम बात करें 4.1 मिनी की, तो ये मॉडल लेटेंसी के मामले में इतना अच्छा नहीं है, बट इंटेलिजेंट ये काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर हम 4 मिनी की बात करें, जो इनका पहला मॉडल था, वो लेटेंसी के मामले में भी डिसेंट है, बट इंटेलिजेंस के मामले में ऑलमोस्ट नैनो के बराबर है। वहीं पर अगर हम 4.1 की बात करें तो वो ऑलमोस्ट बराबर है 4.0 लेटेंसी के मामले में, बट ये इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा अच्छा है। और ये इनकी जो बेस्ट चीज है, ये कॉस्ट के मामले में काफी ज्यादा अच्छे हैं। अभी हम बात करेंगे कॉस्ट के रिलेटेड, कितने ज्यादा ये चीप मॉडल्स हैं कंपेयर टू प्रीवियस OpenAI के मॉडल्स के। अभी के लिए ये मॉडल सिर्फ API के अंदर अवेलेबल है। बेसिकली OpenAI ने ये मॉडल्स निकाले ताकि वो अपने 4.5, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली मॉडल था, जिसके लिए कंप्यूटेशन और एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी और कॉस्ट के मामले में वो बहुत इनएफिशिएंट था, उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। अब OpenAI उस मॉडल को डेप्रिकेट कर देगा 2025 जुलाई तक। तो बेसिकली ये मॉडल काफी ज्यादा कॉस्टली था, इसको रिप्लेस कर दिया गया इस मॉडल से, जो काफी ज्यादा एफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट, और इसका रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा फास्ट है। मेरे हिसाब से 4.5 OpenAI ने काफी जल्दी निकाल दिया था, बट फ्यूचर के अंदर ये इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इस चीज को दोबारा निकालेंगे। बट इसके लिए हमारे पास GPU और रिसोर्स पावर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट आई थिंक OpenAI ने इस चीज को मिस कर दिया यहाँ पर। अगर हम कोडिंग बेंचमार्क की बात करें तो उसके अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमारे पास SWE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क
बेंचमार्क है, इसके अंदर 4.1 काफी अच्छा परफॉर्म करता है 55% एक्यूरेसी के साथ, जो ऑलमोस्ट O3 मिनी हाई के बराबर है। वेयर O3 मिनी इज अ रीजनिंग मॉडल, थिंकिंग मॉडल है, बट ये नॉन रीजनिंग मॉडल उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोडिंग के अंदर। अगर हम 4.1 मिनी की बात करें तो ये वे बेटर परफॉर्म कर रहा है 4o मिनी से, जो कि काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है OpenAI की तरफ से। नेक्स्ट अगर हम एडर पॉलीग्लॉट बेंचमार्क की बात करें तो इसके अंदर भी GPT 4.1 काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एडर पॉलीग्लॉट बेंचमार्क एक बेसिकली रीफैक्टरिंग या कोड एडिटिंग बेंचमार्क होता है, जिसके अंदर मॉडल को कोड को रीराइट करना होता है या फिर स्पेसिफिक पार्ट को रिप्लेस करना होता है। उसके अंदर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अंदर दो बेंचमार्क है, एक होल होता है और एक डिफरेंस होता है। बेसिकली इसके अंदर होल के अंदर पूरे कोड को रीराइट करता है और डिफरेंस के अंदर ये बेसिकली रिप्लेस करता है सम पार्ट को। अगर हम 4.1 मिनी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट GPT 4.5 के बराबर परफॉर्म कर रहा है, बट अगर आप इनकी कंप्यूटेशन और इनकी थिंकिंग और इनके रिसोर्सेज की कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, बट परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट OpenAI ने यहाँ पे एक डेमो एग्जांपल दी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया गया कि कैसे ये जो लेटेस्ट मॉडल है ये UI फ्रंट एंड डिजाइन के अंदर कितना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाला गया था जो बेसिकली एक फ्लैश कार्ड वेब एप्लीकेशन का डिजाइन करना था, जिसके अंदर व्हेन फ्लैश कार्ड को आप क्लिक करोगे तो ये फ्लिप करके आपको एक एनिमेटेड वे में रिस्पॉन्स देगा। बेसिकली एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी समथिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका UI जो जनरेट किया गया 4o से कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा बोरिंग है, बट अगर आप 4.1 का UI देखो तो वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है विद गुड एनिमेशंस और कलर डिजाइन। ये दिखाता है ये कितना ज्यादा इंप्रूव्ड है व्हेन इट कम्स टू कोडिंग और फ्रंट एंड डिजाइन के अंदर। यहाँ पर इन्होंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया। बेसिकली इस टाइम OpenAI ने विंडसर्फ के साथ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन करी है, जिसके अंदर इन्होंने लाइव टेस्टिंग करी है विंडसर्फ टूल के साथ। बेसिकली विंडसर्फ एक AI वाइब कोडिंग टूल है, जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो AI का यूज करके। तो वहां पर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है और ये स्कोर करता है 60% हायर देन 4o से इनके इंटरनल कोडिंग बेंचमार्क के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज है। ये मॉडल इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि अब इसके अंदर रिपीटेड अननेसेसरी एडिट्स काफी ज्यादा कम हो गए, जो कि ऑलमोस्ट 50% है, और ऑलमोस्ट 30% से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है कोडिंग के अंदर इस टूल के अंदर बिकॉज ऑफ दिस मॉडल। यहाँ पे OpenAI ने बताया इस मॉडल के लॉन्ग कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन बेंचमार्क को, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने एक बेंचमार्क का यूज किया है जिसको बोलते हैं नीडल इन अ हेयरस्टैक। इसके अंदर भी ये मॉडल काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो जनरली इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स के अंदर डाला जाता है, जो बेसिकली 1 मिलियन टोकन होता है, उसके अंदर एक स्मॉल इंफॉर्मेशन डाली जाती है जिसको टेस्ट करने के लिए मॉडल से उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए बोला जाता है। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड 1 मिलियन टोकन से वो इंफॉर्मेशन निकालता है तो वो बताता है कि मॉडल कितना ज्यादा गुड है लॉन्ग कंटेक्स्ट विंडो के अंदर। तो यहाँ पर इसने सक्सेसफुली हर अटेम्प्ट में जितनी भी नीडल डेप्थ थी, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन डीप थी निकालने में, ये स्टिल एक्यूरेटली परफॉर्म करता है उस केस के अंदर भी, जो कि काफी अच्छी चीज है। जनरली इनके मॉडल्स अभी तक 128K तक कॉन्टेक्स्ट विंडो को हैंडल कर सकते थे, बट अब ये काफी बढ़ चुकी है। अब ये 1 मिलियन है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री लीडिंग मॉडल के साथ अब ये इजिली कंपीट कर सकता है। जैसे हमारे पास गूगल की तरफ से आता है Gemini 2.5 जो ऑलमोस्ट 10 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो को हैंडल कर सकता है, बट वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है अभी। तो यहाँ पे इन्होंने एक बेंचमार्क दिखाया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे एक्यूरेटली परफॉर्म करता है अदर मॉडल के साथ। अगर हम 2 नीडल, 4 नीडल और 8 नीडल की बात करें, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को निकालना होता है किसी भी डिस्ट्रैक्टेड टोकन के अंदर। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया। आई थिंक अगर हम 4.1 मिनी की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी अराउंड 20% है, और अगर हम 4.1 की बात करें 1 मिलियन कंटेक्स्ट टोकन लेंथ के अंदर ऑलमोस्ट 20% से कम है, बट स्टिल ये इंडस्ट्री लीडिंग में आएगी बिकॉज स्टिल हमारे पास इतने बड़े मॉडल्स नहीं है जो लॉन्ग कंटेक्स्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर पाए एक्यूरेटली। आई थिंक OpenAI ने इसके अंदर काफी बड़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं, काफी ज्यादा ये इंप्रूव्ड मॉडल लग रहा है। सिमिलरली अगर हम विजन बेंचमार्क की बात करें तो इसके अंदर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। MMU बेंचमार्क के अंदर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। GPT 4.1 75% एक्यूरेसी के साथ इसके अंदर परफॉर्म कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है O1 विच इज अ रीजनिंग मॉडल, और ये नॉन रीजनिंग मॉडल उसको बीट कर रहा है ऑलमोस्ट, और ये ऑलमोस्ट बराबर है विजन के अंदर GPT 4.5 के। नेक्स्ट जो इस मॉडल की सबसे बेस्ट चीज है, ये आप लॉन्ग वीडियो कंटेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। ये मॉडल 30 to 60 मिनट लॉन्ग वीडियो को भी इजिली अंडरस्टैंड करके परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकता है, और इसके अंदर ये मॉडल 72% एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकता है किसी भी लॉन्ग वीडियो के अंदर, जो बेसिकली इसको बनाता है स्टेट ऑफ आर्ट इन परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें इस रेंज के मॉडल्स को। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के मामले में ये मॉडल काफी ज्यादा चीप है कंपेयर करें अगर हम अदर GPT मॉडल से जो OpenAI की तरफ से है। तो यहाँ पर अगर हम 4.1 की बात करें तो वो 1 मिलियन इनपुट टोकन्स के लिए $2 लेता है, और कैश इनपुट के लिए 0.5 लेता है, और आउटपुट के लिए अराउंड $8 लेता है। अगर हम 4.1 मिनी की बात करें तो वो 0.4 लेता
लेता है और 4.1 नैनो 0.1 लेता है, जो कि काफी ज्यादा चीप है कंपेयर करें अगर हम अदर मॉडल से। पहले के OpenAI के मॉडल्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे व्हेन इट कम्स टू 1 मिलियन टोकन्स। तो ओवरऑल ये मॉडल काफी ज्यादा अच्छे हैं। आई थिंक ये जल्दी ही OpenAI के टेक्स्ट विंडो के अंदर भी आ जाएंगे, बट अभी के लिए ये मॉडल्स OpenAI की APIs के अंदर अवेलेबल है। ट्विटर के ऊपर भी लोगों ने काफी ज्यादा इस मॉडल को अप्रिशिएट किया। इस मॉडल की काफी ज्यादा टेस्टिंग लोगों ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है। तो अगर हम एक पोस्ट देखें आर्टिफिशियल एनालिसिस से, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कैसे ये मॉडल कितना ज्यादा अच्छा है व्हेन इट कम्स टू नॉन रीजनिंग मॉडल्स। तो ये बेसिकली अगर हम कंपेयर करें 4o से, तो 4o ने डायरेक्टली जंप किया सेकंड पोजीशन पे 4.1, जो बेसिकली नॉन रीजनिंग मॉडल से जस्ट 1 लेवल कम है। अगर हम बात करें DeepSeek V3 से, तो ये काफी अच्छा मॉडल है। तो ये ऑलमोस्ट लीड कर रहा है अगर हम बात करें डिफरेंट बेंचमार्क्स की, जैसे MMLU, GPQA, डायमंड, ह्यूमैनिटी एंड अदर्स बेंचमार्क। बट स्टिल ये मॉडल इतना भी बेटर नहीं है क्लॉड के 3.7 सोनेट को बीट कर पाए। यहाँ पे एक एग्जांपल कंपैरिजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक UI को जनरेट करना था, तो ये UI जनरेट किया है GPT 4.1 ने, जो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट डिसेंट है। बट अगर हम इसको कंपेयर करें क्लॉड के 3.7 सोनेट से, तो उसने तो अमेजिंग UI जनरेट किया जो काफी ज्यादा अच्छा है अगर हम कंपेयर करें दोनों को। तो क्लॉड का सोनेट कोडिंग के मामले में, फ्रंट एंड डिजाइन के मामले में काफी बेटर है। अभी तक ये उस लेवल का नहीं पहुंचा है व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग आल्सो। नेक्स्ट सैम ऑटोमेशन ने एक पोस्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया अगर हम एक रेडिट टेस्ट करें, जो बेसिकली एक मैथमेटिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे आपका UI परफॉर्म करता है अगर डिफरेंट सर्कल्स या क्वाड्रेंगल्स की मूवमेंट पे ये बॉल्स कैसे मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4.1 काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट 4.1 मिनी और 4.1 नैनो इसके अंदर इतने एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो इस चीज को दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर ये मॉडल्स इतने भी एक्यूरेट नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग एंड एवरेज लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये मॉडल बेस्ट है अभी तक के। तो ये था OpenAI का 4.1 GPT मॉडल जो रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया है। तो कमेंट में बताओ कि आपको ये मॉडल कैसा लगा, आप कैसे इन मॉडल्स की APIs को यूज करोगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग AI रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।